So here we begin with our today's class with these doubts, okay, like which I had given last day as a homework. So the first doubt I'm going to start with is number 26. So 26 number ध्यान से एक बार नोट करना. So the question is limit x tends to 0 sine x square divided by x. So everyone note down what we have to do in this particular sum. If I put the value of x equal to 0, 0 square is 0, sine 0 is 0, by 0, you are getting 0 by 0 form. But this sum is a bit different. Okay, ये sum थोड़ा सा different है. इसमें को क्या सोचना पड़ेगा देखो. Now tell me what is the angle of sine function? It is x square. Make sure everyone. Angle of sine function is x square. In order to apply the formula, x square यहाँ पे भी होना चाहिए. Do you remember this formula? That limit x tends to 0, sine x by x is equals to what? 1. So in order to apply this formula, the angle of sine function should be there in the denominator, clear? And this angle should tend to 0. Then the answer is equal to what? 1. So according to this particular formula, what is the angle of sine function? It is x square. यहाँ पे भी x square होना चाहिए. So let us multiply numerator and denominator with x. पर तुम लोगों ने देखा होगा बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कांस्टेंट रहता है. देखो बाकी सारे सम्स में तो कांस्टेंट को बाहर रख पाते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है. दिस इज अ वेरिएबल. इसमें हम क्या करेंगे देखना एक बार. fx into gx वाले हम फंक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लिमिट का. इसके हिसाब से मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं. लिमिट x टेंड्स टू 0 x into limit x tends to 0 sine x square by x square. इस तरह करके मैं अलग अलग ऐसे स्प्लिट ब्रेक कर सकता हूं ना. इस पर्टिकुलर पार्ट में फंक्शन में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर होना चाहिए, और x स्क्वायर शुड टेंड्स टू व्हाट 0. यहां पे नहीं है, बट x टेंड्स टू 0 कैन बी रिटन एज x square tends to 0 by squaring both the sides. If x is tending to 0, x square will also tend to 0. So we have sine x square by x square. So this part becomes 1. So what is left? It is x tends to 0 x. Now here we can put the value of x equal to 0 because it is not in the form 0 by 0. If you put the value of x equal to 0, 0 into 1 will become what? 0. But be careful, there are many students who might think this way. Listen here. Who might think that why not to separate x here, and instead of showing so many steps, why not to directly put the value of x equal to 0 here? So 0 into anything will become what? 0. But it is wrong. It's a wrong concept. 0 into anything is 0, but that anything cannot be again indeterminate form. Please note down that anything can be any real quantity. Are you understanding? बात को सुनना. 0 into any real quantity is equal to 0, but 0 into any indeterminate form, that is 0 by 0 is not 0. इस चीज को क्लियर करना सबको समझ में आया. तो बात ये मत सोचना कि 0 को अगर हम 0 by 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा. नहीं, ठीक है, ये गलत है. तब तो फिर अगर कोई भी सम अगर 0 by 0 फॉर्म में आए तब उसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 0 into 0 by 0 दैट इज 0. तब तो 0 by 0 एंड 0, तब फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म और 0 में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा. बात समझ में मैंने क्या बोल रहा हूं. तब फिर नंबर 0 में और 0 by 0 फॉर्म में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा. So that's why please make sure that इसमें बहुत छोटा डिफरेंस है. बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होगा कि x की जगह 0 लगाने का, बट ये गलत है. ऐसा नहीं कर सकते. पहले इस पार्ट को सॉल्व करो. रियल हो गया, रियल क्वांटिटी हो गया. अब हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं. तो 0 into 1 is what? Equal to 0. This is not decimal. Please note down. This is into.
ओके ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है लिमिट को समझने का, ये वाला पार्ट, ये एक नया कंसेप्ट। और अगर किसी का 25 नंबर डाउट है अगर, क्योंकि एक जैसा ही है तो 25 नंबर अब सॉल्व हो जाएगा। एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज आल्सो 0। ओके द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज आल्सो 0, प्लीज नोट डाउन। So you may copy down this and then we can move ahead for the next question. If you have doubt, you can discuss your doubts. Now see question number 27. So the question is limit x tends to 0 sin cube ax by sin square bx. Now just note down again it is in the form, so again it is in the form 0 by 0, so just note down here everyone. So what I will be doing here in this sum is you have here in the numerator cube और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा क्यूब को ब्रेक करूंगा sin ax into sin square ax by sin square bx के फॉर्म, जस्ट नोट डाउन sin ax sin square ax by sin square bx के फॉर्म में मैंने ब्रेक किया इसको, दो अलग अलग फंक्शंस में मैंने ब्रेक किया, because sin ax into sin square ax becomes what sin cube ax। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, because ऐसा करने से ये जो फंक्शन है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, हम लोग होल टू द पावर 2 लिख करके उसको अलग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? एंड इन दिस केस वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। ले चलो आगे हम पुट करेंगे। वी कैन राइट दिस एज x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx का होल स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, यहां पे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो क्या मैं sin ax by sin bx का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और दूसरा बात, लास्ट डे तुम लोग ये क्लास अटेंड किया तो देखा होगा कि हम लोग ने इस तरह का प्रॉपर्टी बहुत जगह अप्लाई किया था। ये हम लोग इस तरह का प्रॉपर्टी बहुत जगह अप्लाई किया था, लास्ट डे देखा होगा तुम लोग, तो मैंने लिमिट को होल स्क्वायर के अंदर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट। Now please don't put the value of x equal to 0. Yes, thinking that if I put 0, 0 becomes 0, sin 0 is 0, and 0 into this part becomes 0. ये गलत हो जाएगा। अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, because ये पार्ट 0 by 0 है, तो 0 into 0 by 0 is not 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आई होप यू ऑल रिमेंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद लिमिट को न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर दो। ये सारे स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई करना, यहां पे b से मल्टीप्लाई करना। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा। ऑलराइट, यहां पे ऊपर नीचे b से, ऑलराइट स्टूडेंट्स चेक वंस। हियर आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद a। क्लियर? यहां का जो a है वो मैं बाहर रख देता हूं, स्क्वायर के बाहर नहीं, ये समझ में आ गया होगा। ओके, यहां पे b x टेंड्स टू 0 को मैं ax टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं। दिस पार्ट बिकम्स 1, दिस पार्ट बिकम्स 1, so we have limit x tends to 0 sin ax, this is 1 into a becomes a, 1 into b becomes b, and you have square। okay, now you can, now ये indeterminate form हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग x की जगह 0 लगा सकते हैं। x की जगह 0 लगाओ तो 0 into a 0, sin 0 is 0,
and what is 0 into a by b ka whole square? It is 0. So 0 is the answer. So you are finding that the concept is same as the previous doubt, which was number 26. Clear everyone? And I think this part is part में मैं ज़्यादा explain नहीं किया because ये part already last day तुम लोग इस तरह का बहुत सारा सम्स किया था तुमने last day और उसके पिछले वाले दिन, ठीक है? एक बार फटाफट कॉपी करो. Sir. हाँ. So before I'm writing question number 28, but before this थोड़ा सा तुम लोग लास्ट डे का 20 और 21 में दिमाग लगाओ. जस्ट एक बार 20 और 21 को रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन को इसके सॉल्यूशन. बिफोर आई स्टार्ट नंबर 28, I want everyone to revise the solution of 20 and 21. Now I'm 100% sure that ये तो दिमाग में आया होगा जरूर, लेकिन एक जगह थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा. क्या? ये sin square x का पार्ट को लेकर. क्या? I know this. I'm 100% sure मैं जो क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है जो लोग किया है कि ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है. दिस इज क्लियर, लाइक ये समझ दिमाग में जा रहा है. बट पार्ट कहां में प्रॉब्लम आया होगा? sin square x by x वाले में, जो आज अभी हम लोग इसमें और इसमें हम लोग ने सेम डाउट देखा. ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से ये सम को. So let us divide numerator and denominator by x first. उसके बाद इसको स्प्लिट करना. ठीक है, यू नो दैट एक फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के साथ हम हर टर्म के साथ को डिनोमिनेटर के साथ ब्रेक कर सकते हैं न्यूमरेटर के अंदर. तो ये हो जाएगा tan 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 2x डिवाइड बाय x, और फिर लिमिट को भी सारे फंक्शंस में अलग अलग सारे टर्म्स के साथ अलग अलग उसको स्प्लिट करना. लिमिट इस पे अप्लाई करना, फिर लिमिट इस पे अप्लाई करना. ठीक है, जब मैं लिमिट इस पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया. टू क्या है? कांस्टेंट. नाउ मेक श्योर एवरीवन लिमिट x टेंड्स टू 0 कांस्टेंट अगर हो तो फिर लिमिट देने का कोई जरूरत नहीं होता. ओके, मैं फिर यहाँ दिखा देता हूँ. नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट हटा दूंगा. ठीक है, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है. यहाँ पे भी 3x by x 3 आ गया कांस्टेंट, और यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square x by x. Now in this part let us multiply numerator and denominator with 3. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 2 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे ही किया अभी तक कि जहां पे जब हम जैसे कि कोई भी लिमिट के सामने जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट का, तो फिर वहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिमिट लिखते हैं हम लोग? नहीं. तो यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिमिट उस स्टेप में नहीं लिखेंगे उसके बाद. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी 3 रह जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी यू हैव गॉट sin square x by x. So what you can do? You have got 2 ways. Either multiply numerator and denominator with x. ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना, और इसको अलग कर दो. ये पार्ट हो गया 1. देखो एक बार, 1 into 3 becomes 3. इसको अलग फंक्शन ले लेना. इसको अलग. Clear? Now this part is 3 minus 2 is 1. In the denominator we have 3 minus, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1. यहाँ पे इसकी जगह 0 लगा दो, 0 into 1 square. So 1 by 3 is the answer.
29 now. In question number 29, you have x tends to 0, x cube into cot x divided by 1 minus cos x. This is the question. Now, just note down, students. If I put x equal to 0, 0 cube is 0, cot 0 is 0, 0 into 0 is 0, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0. तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में क्या करता हूँ कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ पहले, ठीक है? तो क्या मैं cot x को cos x डिवाइडेड बाय sin x लिख सकता हूँ? देखो कितना बढ़िया समय ये वाला, तुम एक बार ध्यान से इसको नोट करो। cot x को मैंने cos x by sin x लिखा। अब देखो ध्यान से, ठीक है? We all know that x tends to 0, sin x by x is also 1 and x by sin x is also 1. Okay, so what we'll be doing here in this sum is I will write x cube as I'll break this x cube as x into x square into cos x divided by sin x into 1 minus cos x. अब तुम ध्यान से एक चीज नोट करना, कैसे हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, कैसे देखो एक बार हम लोग यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि सम को करना कैसे है, ध्यान से देखना है। लेट अस पुट x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर हम 0 लगाते हैं तो x बाय sin x एक अलग फंक्शन ले लो, 1 हो जाएगा। cos 0 इज 1, इसको अलग फंक्शन ले लेना, और x स्क्वायर बाय 1 माइनस cos x को अलग कर देना, ठीक है? देखो हम तीन पार्ट्स में, तीन फंक्शन में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट होगा x टेंड्स टू 0, x बाय sin x, ये हो गया एक पार्ट। एक पार्ट हो गया x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर बाय 1 माइनस cos x। लास्ट टाइम हमने इसको 2 से 3 बार किया था, याद करो, इसको 2 मेथड से किया था। और एक को ब्रेक करो, x टेंड्स टू 0 cos x में, तीन पार्ट। ये हो गया 1, x की जगह 0 लगाओ तो cos 0 1 होता है, 1 into 1 is 1। नाउ लास्ट में बचा क्या है, x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर बाय 1 माइनस cos x, ये बच गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस रैशनलाइज। द बेस्ट इज लेट अस रैशनलाइज नाउ। सर इसको 2 sin square x by 2 लिख। हाँ, वो लास्ट याद होगा, लास्ट टाइम मैंने दो मेथड बताया था, एक ये मेथड था और एक था 2 sin square x by 2 लिख करके, ये दूसरा मेथड था। तुम कैसे भी कर सकते हो, अपने कॉपी में देखना, मैंने इस सम को दो मेथड से बताया था। a minus b into a plus b is a square minus b square। So 1 minus cos square x is sin square x. You can write this as x tends to 0, x by sin x का whole square, x tends to 0, 1 plus cos x। ये पार्ट हो गया 1, क्योंकि ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह 0 लगा दो, तो cos 0 1, 1 plus 1 is 2। So what is 1 into 2? 2 is the answer। I repeat once again, x by sin x क्योंकि पता है 1, तो उसको मैंने अलग कर दिया। cos x 0 नहीं है तो इसको अलग करके इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म है। इस पार्ट में सॉल्व कर दो नॉर्मल तरीके से। दिस सम यू हैव इन द लास्ट क्लास यू हैव सीन इन मेनी वेज, आई मीन नॉट मेनी मींस टू वेज। यहां पे मैंने दूसरा मेथड यूज किया, रैशनलाइज कर दिया। ओके, कंप्लीट करते हैं इसको कॉपी। नाउ एवरीवन प्लीज नोट डाउन, रेक्टिफाई दैट लाइन। I said that it is 0 into 0. It's not 0 into 0, okay? But it can be expressed into 0 into 0 form by writing cot x as cos x by sin x, or by writing cot x as 1 by tan x. Initially, I said that it is 0 by 0, but actually it was not 0 by 0. Now it is 0 by 0. Clear? So, after this, you can, I mean, again, you have got two ways to do। x by tan x को अलग ले लो instead of writing in terms of sin and cos। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखना है। x क्यूब को x into x स्क्वायर ले लेना, x by tan x, x tends to 0 भी 1 होता है, फिर इस पार्ट को सॉल्व करें, ऐसे नहीं कर सकते। ओके, देखना है तो क्या बोल रहा हूँ। x tends to 0, x by tan x को अलग ले लेंगे,
एंड x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाय 1 माइनस cos x स्क्वायर सॉल्व कर लो। ये पार्ट 1 हो गया और फिर वही स्टेप फाइनल ये वाला। नाउ आई थिंक क्लियर रजत। तो जितने भी डाउट्स तुमने बोला था, दो डाउट बचे हैं, दैट इज 31 एंड 32। 31 आई एक्सपेक्ट था कि इतने सारे जो डाउट्स हम लोगों ने सॉल्व किए, अच्छा इससे ही रिलेटेड ये डाउट है, एकदम सेम है। तुम अगर 29 और 31 देखो तो लगभग सेम लॉजिक पे बेस्ड है, सभी एक ही जैसा था सब। नाउ 32 में मैं बताता हूँ, एक हिंट देता हूँ तुम लोग को, ट्राई करना। व्हाट इज दैट हिंट? लिसनिंग। इसमें बस तुम लोग को एक चीज करना है, ये जो x डिग्री दिख रहा है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व कीपिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री, यू हैव टू एक्सप्रेस इन रेडियन फर्स्ट। ठीक है, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो जहां पे x डिग्री है उसमें पाई बाय 180 x लिख दो एंड उसके बाद नॉर्मल सम को कर देना। ठीक है, मतलब सम नंबर 32 जो है इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin pi x by 180 minus 3 into pi x by 180 divided by x cube. Sum will become a bit lengthy, but there is no other choice option. तो इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल्स थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व कर लो। Now with this now, okay, so I want everyone to solve these two sums. इसको तुम लोग को ट्राई करना। 31 तो आप 100% श्योर हो जाएगा, 32 डाउट आ सकता है, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो वापस कर लेंगे नेक्स्ट, बट एक बार ट्राई करो। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले नंबर 33 ऑनवर्ड्स। नाउ फ्रॉम 33 ऑनवर्ड्स इट इज अ वेरी डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये जो 33 ऑनवर्ड जो है तुम्हारे यहाँ, इसके अंदर क्वेश्चन है टोटल 12। ये 12 क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट है, ध्यान देने का। और ये 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस रहता है और एकदम अलग मेथड है। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था पहले कि अगर लिमिट 0/0 फॉर्म में होता है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो हम लोग करने वाले हैं दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो एवरीवन कंसंट्रेट हियर ऑन द बोर्ड। So I take the first question here, that is 33 का 2, और थोड़ा सा तुम लोग कंसंट्रेट करना, ये सब में कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज हम वैसे तो नहीं बोलेंगे कि एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में। एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान लगेगा बाकी सारे एक्सरसाइजेस। तो एक बार देखो, listen, if I put the value of x equals to pi by 2, so 2 into pi by 2 is pi, pi minus 2 into pi by 2 is again pi, the value of cos pi means 180, cos 180, and the value of cos 180 degree is -1. Pi minus pi is 0, so 0 square is 0. So we are finding 0/0 form. Now the question is how to identify कि यहाँ पे कौन सा मेथड करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करना है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम लोग को इसका तरीका बताता हूँ। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, अब मुझे जानना है कि कौन से मेथड करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है, ये कैसे पता चलेगा? देखो हम यहाँ पे फैक्टराइज तो कर नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा बात है कि इसमें हम लोग रैशनलाइज भी नहीं कर सकते हैं, रैशनलाइज करके कुछ ज्यादा फायदा खास होगा नहीं, तो फिर हम यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार बता दूं तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ क्यों कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे देख के आइडेंटिफाई करेंगे। लिसन, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, मतलब जब मैं x का वैल्यू पाई बाय 2 लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फिर 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, जब मैं x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में तो 0 आ रहा है, x का वैल्यू पाई बाय 2 यहां पुट कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। अब एक काम करो तुम लोग, इस पार्ट को एक बार रफ पे लिख लो। ठीक है,
ठीक है, अब देखना पहले सबसे पहला चीज इस टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाना, इसको स्टेप 1 मार्क कर देना, नाम दे देना, इसको स्टेप 2, स्टेप 3 इसको एलसीएम ले लेना, स्टेप 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब देखना तुम लोग कि स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 तक जितना तुम लोगों ने रिड्यूस करने में स्टेप्स लिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अगर तुमको न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में कहीं भी दिख रहा है, ये चीज या फिर ये चीज या फिर ये चीज, ये नहीं, स्टेप 1 छोड़ो, ठीक है, x इक्वल टू पाई बाई 2, जहां से राइट साइड में 0 होगा, लॉजिक देखो, कांसेप्ट में मैं बता रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहां से 0 है उसके लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन देखना कि इस तरह का एक्सप्रेशन अगर तुमको न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में अगर दिख गया तो फिर तुमको पता चल जाना चाहिए, मतलब ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बताओ तो तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में, बताओ। यस, दिख रहा है, देखो सबको एक बार देखो, ध्यान से आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2x माइनस पाई नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, मतलब जितने भी पॉसिबल वे से हम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर वो फॉर्म में अगर कहीं भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को इस सम में सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो तो यहाँ पे है, ये है, नहीं, नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं, ये है, नहीं, ये है, यस, चेक करो, पाई माइनस 2x दिख रहा है ना? अच्छा, समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? देखो अब बात यह है कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, जो अपना सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में जो 0 आया ना, ये इस पार्ट को क्या करना तुम लोग, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, पुटिंग x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू y, मैंने क्या किया, x माइनस पाई बाई 2 को किसी और वेरिएबल से मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आया तो बात, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, ध्यान से फिर से नोट करना, एक बार तो चेक कर लिया 0 बाई 0, हाँ ठीक है। अब एक पार्ट को रफ में लिखें, एक बार उसको लेफ्ट में लेके आ, 0 स्टार्ट हो गया, 0 आ गया, अब तुम इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, जितना भी तुम सिंप्लीफाई करके जितने भी फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रख लो, ये है, नहीं, और सिंप्लीफाई करो, ये है, ये भी नहीं है, और सिंप्लीफाई करो, ये है, ये भी नहीं है, और सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं कि स्टेप 4 में मिल गया, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे है। तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हमको सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना चाहिए। और क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, सेकेंड स्टेप में जहां पे पहला बार 0 आया है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आराम से, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, सब्स्टिट्यूशन के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस पूरा एक्सप्रेशन को, फंक्शन को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y। सुनना बात को ध्यान से, मैं इस पूरे फंक्शन को x के से हम x से y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मुझे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे y हो जाएगा और यहां पे x टेंड्स टू होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो x टेंड्स टू a है fx और नेक्स्ट स्टेप में y टेंड्स टू a है, आई मीन y टेंड्स टू कोई और वैल्यू है, तो f ऑफ x को तुमको बदल के कोई और आई मीन y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब ये तरीका क्या है लिखने का, देखना है। When x is approaching to a pi by 2, where will y approach to? Put x tends to pi by 2 here. Clear? Put x tends to pi by 2 here at the place of x. If you put x tends to pi by 2 at the place of x, what is pi by 2 minus pi by 2? It is 0. Means where will y approach to? Y will approach towards 0. If x will approach towards pi by 2, so according to this part, I mean substitution wala part, we find that y will approach towards 0. Note down it. Next. Now let us come to this part. So x tends to pi by 2 can be replaced with x tends to pi by 2 can be replaced with y tends to 0. Please everyone note down. Patience रखना, समझना, इसको वापस से खुद से करना, फिर एक सम करना, हो जाएगा, फिर देखना कंफर्टेबल हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, लिमिट चेंज कर दिया मैंने, x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह पे y टेंड्स टू 0 लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट, राइट साइड में जहां जहां x दिख रहा है x को रिप्लेस करो यहां से,
तो बताओ तो अगर x माइनस पाई बाई टू वाई है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा बताओ तुम। मुझे सुनाई देना चाहिए तुम लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। y plus pi by 2. Yes, it is y plus pi by 2 or pi by 2 plus y, same thing. You can write anything. ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, x का वैल्यू, दैट इज y plus pi by 2, y plus pi by 2, एक ही बात है। ठीक है, अब हमारा सम अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेन यहां तक ही था, 2 into pi by 2 is 5, 2 into y is 2y। यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे अच्छा बताओ ना, तो व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यहां लगेगा, देखो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा, टेल मी, पाई प्लस थीटा कितना होगा, पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब cos ऑफ 2 into 90 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता माइनस साइन है, थीटा। ऑल साइन tan, माइनस इवन है तो cos ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस cos थीटा। ठीक है, माइनस cos थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, क्या करना है हम लोग को, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a बाई 2 होता है ना, तो फिर 1 माइनस cos 2y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर y। ठीक है, if 1 minus cos a is 2 sin square a by 2, what will be 1 minus cos 2y? If a becomes a by 2, 2y will become 2y by 2. So what is 2y by 2? It is y. अब बहुत सिंपल है, 2 by 4 को बाहर रख दो, कांस्टेंट है, और y tends to 0। ठीक है, समझ में, 2 by 4 कांस्टेंट है बाहर, sin स्क्वायर y by y स्क्वायर को sin y by y का होल स्क्वायर, लिमिट को अंदर लेके जाओ, ये 1 हो गया, आंसर इज हाफ। Everyone copy down this, and then if required I'll explain you once more, but copy down. So everyone try the next question, that is number 3. Everyone try question number 3, okay, 33 का 3 एकदम सेम है, 33 का 3 एक बार ट्राई करो, ये बार ओके, ट्राई करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करो, एकदम आराम से, जैसे जैसे मैंने बोला ना, तुम देखो ये वाले सम को बस देखना कि मैंने पहला क्या बोला, पुट करके चेक करो, फिर क्या बोला, 0 by 0 है तो रफ में लिख लो, फिर तुम हर एक स्टेप में देखते जाओ, अगर वो चीज में से कोई भी ऊपर नीचे अगर है ऐसा इस तरह का एक्सप्रेशन, तो सेकंड लाइन वाला जो पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करो, आराम से करते जाओ, एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ, ओके, अपने आप को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ो। सो एवरीवन नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज number 3. So you have x tends to pi by 2, and it is 1 minus sin x divided by pi by 2 minus x whole square. So let me show this sum, because बहुत लोगों ने ट्राई किया, that's a very good thing, okay, ट्राई किया तुमने, तो एक बार अगर हम एक बार बता देंगे ये सब, तो अच्छे से देखो तो अब क्लियर हो जाएगा पूरा चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह pi by 2 लगाया, so we have 1 minus sin pi by 2, sin 90 is 1, 1 minus 1 is 0, pi by 2 minus pi by 2 is 0, 0 का स्क्वायर is 0। मतलब जब मैंने x का वैल्यू pi by 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किया तो 0 by 0 फॉर्म आया। अब इस पार्ट को लेफ्ट में, एक रफ पे इसको लिख लो, ठीक है, अब इसको लेफ्ट में, पहला स्टेप में लेफ्ट में शिफ्ट करना। क्या ये वाला चीज है, हाँ है, किसी और फॉर्म में, कैसे, माइनस साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, अगर है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, समझ में आया थोड़ा। देखो ये चीज तो नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 2 माइनस x है, देखो, ठीक है, मैंने बोला था ना कि इनमें से फॉलो करते जाओ स्टेप्स,
और देखते जाओ कि क्या इसमें से कोई एक्सप्रेशन है या नहीं, ऊपर या नीचे। अगर है तो सब्स्टिट्यूट कर देना ये चीज को, x माइनस 5/2। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट इन x minus 5/2 with, I mean substituting x minus 5/2 with another variable. Let's take y or z, anything you can take. But don't take x. When x tends to pi/2, where will y tends to? Put the value of x equals to pi/2 here. So pi/2 minus pi/2 is 0, means y will tend to 0 here. Y will tend to 0 here we find. So we have limit y tends to 0. x tends to pi/2 के जगह पे y tends to 0. जहां जहां x है, x के जगह पे यहाँ पे x का वैल्यू को रिप्लेस कर दो। क्या होगा x का वैल्यू? pi/2 प्लस y। ठीक है, उसके बाद अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। 90 मतलब 1 into 90, ये ऑड फंक्शन, ऑड है तो साइन विल चेंज टू कॉस, मतलब साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, दैट इज कॉस फाई। ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट -1 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। Now I don't need to explain you this sum because you have been doing this in almost every 3 question you are getting this sum only. So तुम याद होगा लास्ट दिन जब मैंने बताया था, क्यों मैंने 2 मेथड से बताया था, इसका कारण था। और मैं ये टाइप का सम पे क्यों ज्यादा स्पेशली फोकस कर रहा था, बिकॉज ये सम तुमको लगभग हर जगह ही है। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम देखोगे तो लिमिट्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और अब तो याद भी हो चुका है, इसका आंसर हाफ होगा। So let us rationalize. One minus cos square y sin square y. और उसके बाद sin square y by y square 1 कर दो, फिर बाकी को अलग कर दो। So आंसर इज हाफ। Now सर नंबर